Hello everyone, welcome to Stay Update presented by J.K. Rakhan. So friends, in this video we are present here with a very good news for all those candidates who have completed their diploma in engineering in different disciplines, and also for those candidates who have completed their graduation in any discipline, and also for those who have completed their intermediate, that is 12th class in commerce, because a latest apprentice vacancies from the Rashtriya Chemical and Fertilizer Limited has been declared on their official website. And friends, in this apprentice vacancies there will be no examination will be takes place. Only your marks that you have scored in your education, on the basis of that marks the selection will takes place. There will be no examination will takes place in order to select under this apprentice vacancies. So friends, in this video we shall discuss in a very comprehensive way what is the eligibility criteria for the age, education, and what will be the selection process, and related to the stipend, about the training purpose. So all these details we shall discuss in this video step by step. So firstly, in order to download the official notification of this trade apprentice vacancies, you can come on this official website. The link of this official website will be given in the description box of this video. So after clicking on this link, you will be in a position to download this official notification in your mobile. So friends, this is the link that is available here, and then after an official notification will be displayed on your mobile. So you can see here, this is a Rashtriya Chemical and Fertilizer Limited. This is a Mini Ratna company in. So friends, let us start this video in a bilingual language so that each and every candidate from across the nation can understand the content in a very optimum and effective way. So friends, these are the apprentice vacancies that are available under the different trade. So first trade is a recruitment executive trainee, which comes under the HR. Then after AOCP training, the full form of this trade is available here, that is attendant operator chemical plant. Then after third is a accounts executive training. Then after medical lab pathology training. So for each trade there will be a different education criteria that we shall discuss further. And then after friends, few vacancies are available exclusively for only those candidates who have completed their diploma in chemical, computer, electrical and mechanical. So you can see here the maximum duration of the training for each discipline and the number of vacancies that are available under the different trade. Then after friends, this is the education eligibility criteria for each particular trade. तो सबसे पहले अगर आप देखो रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के अंडर, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए. तो जिन कैंडिडेट्स ने भी सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखी है और साथ में उनको बेसिक इंग्लिश को नॉलेज होना चाहिए, वो सभी कैंडिडेट्स फर्स्ट वाले ट्रेड के अंडर अप्लाई कर सकते हैं. देन आफ्टर AOCP, जो कि आपका अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के अंडर, इसमें जिस कैंडिडेट्स ने जो है BSc कंप्लीट कर रखी है और BSc में उन्होंने पर्टिकुलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी जो है पढ़ी है, वो सारे कैंडिडेट्स के अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव. तो फ्रेंड्स, इसके अंडर जिन कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ अपनी 12th और 12th में उनको कॉमर्स होना चाहिए, या फिर BCom, BBA या फिर ग्रेजुएशन में उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, तो वो कैंडिडेट्स इस डिसिप्लिन के अंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी, इसके अंदर जिन कैंडिडेट्स ने अपनी 12th पास कर रखी है और 12th में उन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, वो कैंडिडेट इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके डिफरेंट डिसिप्लिन रहेंगे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, उनका जो डिप्लोमा है उस पर्टिकुलर ट्रेड में होना चाहिए जिसके अंडर वो अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैकेनिकल के अंडर अप्लाई करते हैं तो उनका जो डिप्लोमा है उन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल में किया होना चाहिए. तो ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पे एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा डिफरेंट ट्रेड्स के अंडर. तो जितने भी कैंडिडेट्स ने सिंपल अपनी जो है डिग्री की है, या फिर अपनी 12th इंटरमीडिएट पास की है, या फिर डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, जो यहाँ पे डिसिप्लिन्स मेंशन्ड हैं, वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ये रहेगी एक मिनी रत्ना कंपनी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए. और उसके बाद फर्दर कभी आपकी रिक्रूटमेंट डिक्लेयर होती है तो फ्रेंड्स, आप कैंडिडेट्स जो रहेंगे जिन्होंने इसके अंदर ट्रेनिंग की रहेगी, उनको ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स अपग्रेडेड रहेंगे. तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी. उसके बाद फ्रेंड्स, ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहेगा एज रिलैक्सेशन के लिए, जो आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 ईयर्स, और यहाँ पे जो आपकी मेडिकल लैब ट्रेनिंग है इसके लिए सिर्फ आपका 21 ईयर है मैक्सिमम एज. तो यहाँ
यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है उसके लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो स्टूडेंट से रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल SC ST और OBC वालों के लिए आप यहाँ पे थर्ड पैरा के अंडर यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन SC ST वालों को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का और दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में आप ये सारे ईयर्स अपर एज लिमिट में ऐड करेंगे तो SC ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रेंड्स मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एजुकेशन और आपकी जो फ्रेंड्स एज रहेगी वो आपकी 1 नवंबर 2020 तक कंसीडर की जाएगी। योर एजुकेशन एंड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी काउंटेड एज ऑन 1 नवंबर 2020, सो प्लीज कीप दिस डेट इन योर माइंड। देन आफ्टर फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे स्टाइफन आ जाता है। तो स्टाइफन विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु विल सेलेक्ट अंडर दिस अप्रेंटिस वैकेंसीज ऑन मंथली बेसिस थ्रू आउट योर ट्रेनिंग। सो आप जब वहाँ पे ट्रेनिंग करोगे तो मंथली बेसिस पे आपको वहाँ पे स्टाइफन फ्रेंड्स रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरोस्पोंडिंगली आपका यहाँ पे स्टाइफन जो है वो कितना रहेगा, डिफरेंट आपकी जो कैटेगरीज रहेंगी। उसके बाद प्लेस ऑफ ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे मुंबई रहेगी और उसके बाद आप यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एज सच एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होगा। देयर विल बी नो एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अंडर दिस अप्रेंटिस विल बी कंडक्ट ओनली the marks that you have scored in your education criteria will be taken as a basis in order to select under this apprentice vacancies. A merit list will be drawn in order of the percentage that you have already secured in your education qualification. So on the basis of that you will be shortlisted for the further process, that is document verification. And after document verification friends, the medical examination, or we can say that medical fitness certificate that you need to submit in the organization, and then after you will be selected under this apprentice vacancy. So this is the whole process in order to select under this apprentice vacancies. So friends ये चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से आपको समझनी है अगर आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करते हो। और कितने ड्यूरेशन की आपकी ट्रेनिंग रहेगी वो आपके डिफरेंट ट्रेड पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ट्रेनिंग आपकी क्या रहेगी डिफरेंट ट्रेड के अंडर, जिसके अंडर फ्रेंड्स आप अप्लाई करोगे। तो फ्रेंड्स इसके अंडर अभी ऑनलाइन फॉर्म जब वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 जुलाई 2021 यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म का जो लिंक है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 7 अगस्त 2021 तक फ्रेंड्स इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसके अंदर फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली इसके अंदर ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा। जो मार्क्स आपने ले रखे हैं उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन रहेगी। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम मार्क्स ले रखे हैं उनके ज़्यादा चांसेस इसके अंदर सेलेक्ट होने के रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, या मैं आपको बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे वो ज़रूर इसके अंदर फ्रेंड्स अप्लाई करें। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन के अंडर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।